Oh, shall we pray in the tongues? Rabaluna hakbaridalina khalinibi shibiridalina khalinibi. Ro 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 baby shidaridalina hakbaridalina hakbaru. Rolana khalina bashavara halana khalina bashindaro dolonibi. Rene kelina hakbaridalina handaro dolonibi. Rabra riklabalala bashidoro dolona khalinibi shidara hamboro donobo. Rabra riklabololo shibere hendari dalina khaline keline bishidare dalina khaline ba. Raham dari dalina hakbare dalina khalona hakbaro. Korebelina khalina ba shafaro dolala ba. Hibari dalina khaline kelina hakbare. Kirebelina khaline ba shakaro hodolona ba. Rabra riklabalala bashidoro dene keline be. Here delena khalina ba shabro dulun khalina bo korabalana khalina ba shakrahalana hakbara kirabalana ba shikaralana ba shidoro dulun khalina be shikare delena khalina bo korabalana khalina ba shidarandari dalina khalina be here delena khalina bo koraba rabra riklabalala ba shidoro dulun khalina be shindari bani beli ribra riklabalala ba shindari delena handari dalina khalina be korabalana khalina ba shandarabalana ba ho rabbo Handoro dulun khalinibi, Kibere delina khalina bashabalana bashandoro dulunibi, Ribra riklavala bashidere delina handari delina keliniba, Rabana handoro khalinibi, Rabra riklavala bashidare delina khalinabi shidoro dulunaba, Rabona handoro duluna kilina khalinibi shidoro duluna khalinibi. Lord, I pray for my president. Oh, I pray for the President of India, Prime Minister of India, MPs, MLA, and the Chief Minister and their families. Lord, I pray, Holy Spirit, convict them right now. Convict them, Orovalona Handorodolunibi, Shabarodolona Khalenebi Shidarebeliniba, Rabra Riklabalala Bashiborodolona Khalenebi Shideredenebi, Rabene Hendari Delina Khaleneba Shakarodolona Khaleneba, Ralana Handari Delene Kelenebi Shideredelina Khalonabu, Rabbo Rabba Bahori Delene Kelineba, Ralana Bashidaredenebi, Shikorodolona Kachindari Delina Shidaro, Rabbe. Jesus Christ is the Lord. Jesus Christ is the Lord. Lord, I sprinkle your precious blood upon India, Lord. Whosoever living in the India, I cover them in the blood of Jesus. I bind thy spirit of devil into from the India. I release the anointing of the Holy Spirit and the presence of the Holy Spirit upon my India, Lord. Thank you, Jesus. You shed your precious blood for India. You love India. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus Christ is the Lord of India. Ribalene hekebere delina khalene bishiduru. Rabra riklabalala bashidari delina khalene bishiduru. Rabena hindari delina khalene bishiduru. Kore belene khalene bishidari delina hakbari delina ba. Thank you for your Lordship, Lord. Jesus, I declare your Lordship upon India. Oh, re be shidoro dolona khalina be. Riba la bashida ridalene be. Rabon handoro dolona khaline be shida ribalena be. Lord, I pray for different nations, Lord. Oh, ribalina hakbari. Different nations, oh, ribalona kolone be shidere delene be. Rabana handari dalina khaline be shikoro dolona khaline be shiba baba. Lord, I pray for the administrator, Lord, whosoever, wherever it is, Lord, all the forces, Lord, I pray for all the forces, army, navy, and Prabhu, we pray for, Lord, for in Jesus' name, oh Jesus' name, oh Lord, wherever the church is, Lord, I pray for each and every single believers, Lord. Oh, Rabalina Kalinaba, Lord, senior believers, new believers, for every believer, I pray, Lord, open their eyes, Lord, open their eyes. I pray for the church leaders, Lord,
every leader, every minister, whether he is bishop or small servant or big servant, Lord, I pray for Lord, whosoever working for the Lord, in the name of the Jesus, bless him, Lord, open their eyes, Lord, give them new revelation, new anointing, freshness, Lord, aridalina hakbare dilina bu, shabarodulu no khalina hakbarodulina ba, rabbe rebe shidere dilina khalina ba, shidaro hundoro dulina khalenebi. Lord, I pray for all the students, Lord, especially 45 students, Lord, who are under the school of Holy Spirit. Each and every one, Lord, each and every one taking by name, Lord, each single person as an individual, Lord, with a personal way, Lord, I bless them, Lord. I bless them, Lord. I bless them, Lord. Oh Lord, I release your anointing upon each and every one, Lord. Oh, rebelelelebe shiderelelebe rekelina hakbaridalina hakbru korebelina hakbarana handaridalina ba shabaralana handaridalene kelenebe korebelene khalina ba shikaroduluna khalana ba Kibere delina khalina hakbari delina hakbari kirambo robo nahandari dalina khalina ba ralana khalina bashidare delina khalina bishidare rabra rikla balala bashidoro hondoro dulo nakhiline be shekere delina ba shekeri dalina handara rigwanina ridalina ba shabru dulo ba Rabba riban handari daline khedina ba shabro rebeni kilina hakbaradana handari daline be shebere daline ba handoro dolona khaline be shidara bana handara. Holy Spirit, help them in their weakness, Lord. Whatever their weakness, Lord, let every weakness remove in Jesus' mighty name. Lord, renew them, repair where they want the repair, Lord. Rebuild them, Lord. Recreate their life, Lord. Or renew them with their mind, O Lord. Whatever they lost, give it back them in a double portion, O Lord. Or restore them, Lord. Recreate, Lord. Thank you, Rabani Kilina Hakbara Delenaba. Lord, इनके प्रेयर करने का तरीका बदल जाए और रिबा लेने के बीच खोरो दुलोनबो. Lord, they are be the people of thanksgiving, Lord. Fill their heart with your presence, Lord. Rabo rabali la 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 ba. Lord, this batch will be unique, Lord. Use them for your mighty, wondrous work, Lord. Use them for your kingdom, O Lord. Lord, I bless them with the blessings of the kingdom over them, Lord. Rabra rikla balala bashabare delina handari dalina hakbare kira balana khalene beshidoro dolona ba Rabba ribana handare delene kiline hekebere delene be kire belina khaline bashandoro dolona khalene ba Rabra rikla balala bashibara rabba ridane beshidere delini bishidoro ore delina khalene beshidare khalina hakbare delina be rekalana bashandoro dolona khalina bashabaraba ralana bashandari delene hedere delina khalene be kebere delina khalina bashedere delina ba ravana handoro dolona khalina bashidare delene be here delina khalina bashikoro dolona khalene Ravani Kilina Hakbaro Dolona Ba Relena Kalina Bashikere Delina Kalene Bishidoro Dolona Kalene Rabra Rikla Balala Bashibere Delena Kalina Ba. Holy Spirit, bring them from the comfort zone. Oh yes, bring them, Lord, bring them out. Oh Ribalina Hakbari Delina Kalena Ba. प्रभु इन्हें तैयार करें होली स्पिरिट आप तैयार करें प्रिपेयर देम लॉर्ड ओरी दे ले बिशी दे ले बी रा बा शिवरो रो बो रिबालाना खाली ने बशी करे दे ना हकबरा Yes, Lord, fill them, Lord. Fill your presence, Lord. Every student must be filled with the Holy Spirit. Lord, Holy Ghost, help it and
do this ministry, Lord. I release your anointing upon them. I release your presence upon them, Lord. Oh, ribelene kelina bashikoru, korebelene khalina bashadara rabana handoro dolona khalina bashikere delene bi, kebere delene khalina bashikoru dolona khalana ba, rabra riklabala la 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 bashideri dalina hakbari, kerebelene khalina bashidaru dolona khalina bo, rabona handoro dolona bashibero dolona khalina bashibere. Kere delena kalina bashidoro dono hambaro rabra riklabala la 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 bashidare delena kalina bashida rahandari ralana bashidare delene bi hori dalala bashida raba riba raba raba. Lord, I submit myself along with all the students, Lord. Yes, Lord, I surrender my all to you. I surrender my spirit, soul, body to you. I lent myself to you. I yielded my spirit, soul, body to you. I humble myself, Lord, and I come under your mighty hand. Yes, Lord, I dedicate myself and the 45 students into the authority of the Holy Spirit. Holy Spirit, you control us. You capture us. You are our custodian, our director. Oh, Rabalina Hakbaru, Shakraboluna Hakbara, Rikrabalana Bashakrabi, Kiribilina Kaline Hikibiri, Shaudari Dalina Kalina Bashandoro Doluna Handari Dalina Babari Dalinabi, Shibiri Dalina Kalina Hakbaru. Kora bala la 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 shabara baba 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 hori baba riba baba baba hori dale le le bishibere dele le bishibere dele ne khalina ba ramra rikla bala la bashida rahala na hakbare dele ne kili na hakbare kira balo no khale ne bishida rodulu no bashamboro do nibiri rabai ne hendari dalina ba shabboru dalina khale ne bishikara hala na ba shikere dele ne khalina ba shikuru role ne bishida re dele ne khalina ba shikuru nara Rabana handari daline खेली न खाली न बशा बरालाना बशिंदरी दलीन भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभु जी सेवकाई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु जी आपके नाम से हमें ब्लेस करते हैं प्रभु जी जिनके वसीले से हम सेवा कर पाते हैं जिनके वसीले से हम खाना खा पाते हैं प्रभु जी जो लोग हमारे लिए मुट्ठी खोलते हैं प्रभु जी प्रभु जो आपके सेवक की सुधि लेते हैं प्रभु जी हाँ प्रभु जी टाइम बे टाइम प्रभु जी अपने मुंह का निवाला हमको दे देते हैं प्रभु जी प्रभु हम ऐसे हर एक घराने के लिए विश्वास से प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीर्वाद देते हैं री बे बे शिदा रोदोलो न खाली ने भी खेबेरे देले न खाले ने भी शिदा रहाला न बा शिदा रबो न हंदरो दिली न बा प्रभु जी उनके खत्ते भरे रहे उनके स्टोर रूम भरे रहे प्रभु जी उनके बैंक बैलेंस भरे रहे प्रभु जी उनके यहाँ बढ़ोतरी हो प्रभु जी राला न खाली न हक भरे दिली ने भी प्रभु जी आपने कहा है जो मेरे दास को एक कटोरा पानी भी पिलाएगा उसका प्रतिफल खोने नहीं पाएगा प्रभु तू उन्हें भविष्यवक्ता का रिवार्ड दे प्रभु जी राबाला न खाले ने भी शिखरे दिली न खाली न बवरोदोलो न हम्बरो दिली ने भी शवराला न खाली न बाशिंदरी दिली न खेले ने भी राब्रारी क्लबाला ला बाशिंदरो दोलो न खाली न बशबर हंदरो दोलो ने भी शिबेरे दिली न खाले ने भी शिबरहाला ला बाशिदरो दोलो न बा Lord I release your anointing upon them O Lord I bless them Lord I bless them Lord and I bless them Lord thank you for this day O Master thank you for this day we are in the 27th day Lord and today is very special day Lord I have to conduct one marriage ceremony thank you Lord bless me for this Holy Spirit you conduct all service through me Lord use me for this anointed time, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much, Holy Ghost. Lord, I pray for the teaching session of this 27th day. Lord, Holy Spirit, you teach. Yes, Holy Spirit, you teach. I give my all to you. One more time, Lord. Use me, Lord. Use me, Lord. And use me, Lord. And Lord, bless me today, Lord. Today is my birthday, Lord. Lord, give me gift from the heaven. I want the gift from your hand, Jesus. My elder brother,
Oh, you call me your friend. What a blessing, Lord. What a privilege that I belong to you. I am in you and you are in me. What a privilege to give this testimony that Jesus Christ is my friend. Oh, I am the friend of Jesus. I am the friend of the Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Lord. Thank you. I start this new year, this new day, with your presence, with you. Jesus, thank you that I'm in your team. I'm in your perfect will. You have called me, you have anointed me, and you are my sender, Lord. Thank you for the anointing you have given to me. Thank you for the calling you have given to me. Thank you for the ministry you have given to me. Lord, I want to be faithful till my last breath, Lord. Holy Spirit, make me faithful, true person, Lord. Yes, Lord, full of truth, full of Word of God, full of Holy Spirit. Oh, Holy Ghost, thank you, thank you, thank you, thank you so much. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen, amen, amen. करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। In Jesus' glorious name. Amen. Amen. Just sit quiet for some time, and after that we will go for teaching. Bless you and bless you and bless you. So today's our topic is the same, 7 spirits of God. When you have the Spirit of the Lord and He manifests in all the 7 spirits, then it is known as fullness. परिपूर्णता कब होती है? जब पवित्र आत्मा 7 प्रकार से अपनी आत्मा को प्रगटीकरण में लाता है। तो हम लोगों ने कल देखा था उसकी 7 प्रकार की आत्माओं को, है ना। यशाया 11वें अध्याय से मैंने आपको नोट कराया था। तो एटलीस्ट हम सेवकों को पता होना चाहिए यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और परमेश्वर के भय की आत्मा। सो अभी हम लोग कल जो देख रहे थे, मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। ये टॉपिक अपने आप में बहुत वाइड है। आज हम थोड़ी गहराई में जाना चाहेंगे कि जब परमेश्वर के भय की बात होती है तो क्या मतलब है। कल आपने स्टडी लिया था, सो आज थोड़ा डीप स्टडी में जाते हैं। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है वो उसके वचन और उसकी उपस्थिति पर थरथराएगा, कांपेगा। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र भय होना जरूरी है। पवित्र भय परमेश्वर की दृढ़ नींव की कुंजी है।
जो मेन फाउंडेशन है, द मास्टर की ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द फियर ऑफ लॉर्ड इन यू, जो हमको उद्धार पाने के लिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए या ज्ञान के खजाने को हमारे लिए खोल देता है। तो जब किसी के अंदर परमेश्वर का पवित्र भय होगा तभी वो उसका रेस्पेक्ट करेगा, मान सम्मान करेगा। रेस्पेक्ट करने का मतलब तभी वो उसका कहना मानेगा। तो परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर पर विश्वास करना है, और परमेश्वर पर विश्वास करना उसकी आज्ञा मानना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप में परमेश्वर का पवित्र भय है तो आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, आदर देंगे, सम्मान देंगे, धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। वो आपके जीवन का केंद्र बिंदु होगा जिसके कि वो योग्य है। He is worthy. So question is this: why people don't fear God? I come to this conclusion that because they don't even know how great is our God, how big is. आपको मालूम हमारा परमेश्वर कितना महान है? आइजाया चैप्टर 40 वर्स 12 to 17 आप अपना पढ़ना घर में। वहां पर कुछ इस प्रकार से मेंशन है कि परमेश्वर समुंदर को अपने चुल्लू से नाप लेता है, आकाश को हाथ के बित्ते से नाप लेता है, पृथ्वी की मिट्टी को नब्बे से भर लेता है, पहाड़ों को तराजू में तोल लेता है, पहाड़ियों को कांटे में तोल लेता है। सी हिज ग्रेटनेस। वो परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में वास करता है, जिसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, सूर्य को बनाया। सूर्य को आप अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। उसमें आग भी है, एनर्जी, गर्माहट भी है, उसमें रोशनी, लाइट भी है। सोचिए जिसने सूरज को बनाया उसमें कितनी आग होगी, कितनी एनर्जी होगी, उसका उजियाला किस लेवल का होगा। साइंस के स्टूडेंट जानते हैं कि सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। वहां तक जाने में पूरी जिंदगी चाहिए, वन लाइफ, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि आप, वो इतनी आग है कि उसकी करीबी में भी आप नहीं पहुंच सकते। कभी आपने सोचा सूर्य की रोशनी धरती पर मात्र 8 मिनट 20 सेकेंड में आ जाती है, उसकी लाइट आ जाती है। परमेश्वर इतना महान है, और हम क्या नेशंस उसके सामने कुछ भी नहीं। बाइबल में लिखा है वो कुछ भी नहीं। वो हमें जातियों को, विभिन्न नेशंस को ऐसे ट्रीट करता है जैसे बाल्टी में से एक बूंद मट्टी, धूल जो है वो है। हम लोग को वो कहा उसने, और उस धूल से भी गए गुजरे। नथिंग देन डस्ट, वहां लिखा है नथिंग देन डस्ट। सो मैं कहना क्या चीज चाहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा परमेश्वर इतना महान है, और उसकी महानता का वर्णन कैसे हो। हम लोग चूंकि ना तो उसको जानते हैं, ना ही उसके वचन को जानते हैं, ना ही हम उसकी सामर्थ्य को जानते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि हम लोग भूल में पड़े हुए हैं। वी आर इन मिस्टेकन। वाई? बिकॉज वी डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड, एंड बिकॉज वी डोंट नो द पावर ऑफ गॉड। Amen. 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 Jesus said in Matthew chapter 22 and verse
29 and Mark chapter 12 verse 24. You are wrong because you know neither the scriptures nor the power of God. ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो, न ही परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। बाइबल कहती है इसलिए तुम भूल में। क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को? Is this not the reason you are wrong, you are mistaken, because you know neither the scriptures nor the power of the God? हम लोग भूल में, गलतफहमी में इसलिए पड़े हैं क्योंकि हम ना तो परमेश्वर को, न परमेश्वर की सामर्थ को, न उसके वचन को जानते हैं। देखें कि परमेश्वर को जानना अति आवश्यक है। जब आप उसको जो वो है उस लेवल में जानते हैं, तब जाकर आपके अंदर एक पवित्र भय उत्पन्न होता है, जिसमें आप रिस्पेक्ट, ऑनर उसको देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप खुद ब खुद उसके कहने पर चलने लगते हैं। विलिंगली ओबीडियंसी। सो परमेश्वर का भय हमारे दिल में आए, इसके लिए मैं क्या करूं? मैंने कल कहा था हमें कुछ अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। हमें परमेश्वर के लिए एक स्टेज बनाना पड़ेगा। मेरा हृदय, इनर मैन एक स्टेज बने। मेरे ख्याल से आप इसको टाइटल दे सकते हैं आज की टीचिंग को इस प्रकार से कि डिवाइन स्टेज ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड। सो डिवाइन स्टेज के अंदर क्या है? डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ग्लोरी, देन डिवाइन जजमेंट. So what I want to explain today, there are three more things to build in you the fear of the Lord. परमेश्वर के वो भय हमारे अंदर आए, इसके लिए तीन बातें को जानना जरूरी है। मैं इन सब बातों को एक निचोड़ के रूप में आपके सामने ला रहा हूं ताकि समय कम लगे। फर्स्ट थिंग इज डिवाइन ऑर्डर। जब डिवाइन ऑर्डर लग जाता है तो डिवाइन ग्लोरी आती है, और जब डिवाइन ग्लोरी आती है और उसमें आप परमेश्वर को हल्के से लेते हैं या उसका मान सम्मान या आदर जिस योग्य वो है वो नहीं करते, या उसकी बात को सुना अनसुना करते हैं, या उसका कहना नहीं मानते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, तो फिर डिवाइन जजमेंट आता है। और जब डिवाइन जजमेंट आता है फिर आपकी नहीं सुनी जाती, आप कहीं के नहीं रहते। तो समझना है यहाँ पर थोड़ी सी बारीकी के साथ, और बहुत गहराई की बात को मैं कहने जा रहा हूं, उसे समझें कि परमेश्वर इससे पहले कि अपनी महिमा को प्रकट करे, इससे पहले कि वो अपनी महिमा को प्रकट करे, वो पहले ईश्वरी व्यवस्था लगाता है। परमेश्वर की व्यवस्था यानी कानून, नियम आ जाता है। एक बार जब उसकी व्यवस्था लग जाती है तब उसकी महिमा आती है। मीन्स वो आएगा। मैं अभी बताता हूं आपको, जब मैं महिमा कह रहा हूं तो महिमा का अर्थ क्या है। और जब महिमा उसकी आ जाती है तब वहां महान आशीष आती है। और जब एक बार उसकी महिमा प्रकट होती है तो वहां फिर किसी भी प्रकार का अनादर, अव्यवस्था, अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंसी, डिसऑर्डर, डिसरिस्पेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ हो गया देन डिवाइन जजमेंट आता है। वो बड़ी भयंकर बात हो जाती है। ठीक है ना। परमेश्वर ने इस तरीके को 2 मिनट से कम समय में प्रकट किया है। जब मैं मॉर्निंग डिवोशन में था और प्रार्थना कर रहा था, मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे से प्रार्थना कर चुका था। प्रार्थना करते करते अचानक से
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये चीज मेरे सामने आई और उसी पल ये आया कि इस प्रेयर को रिकॉर्ड कर सारे स्टूडेंट्स को भेज दे। सो टीचिंग से पहले जो ऑलमोस्ट 10-15-20 मिनट मैंने प्रार्थना रिकॉर्ड करी है और वो मैं आपको भेजा है, आप लोग सुने, उसके साथ प्रार्थना में समय बिताएं। सो परमेश्वर मुझे इस बात को दिखा रहे थे कि डिवाइन ऑर्डर लगता है तब डिवाइन ग्लोरी आती है। आप देखें शुरुआती दौर में जेनेसिस चैप्टर 1 में परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया, बेडोल बनी, वहां अंधेरा था, प्रभु का आत्मा वहां मौजूद था। प्लान ये था कि आदम को अपनी समानता समरूपता में रचा जाए और जब आदम को बनाने से पहले जो कुछ भी आदम के लिए जरूरी था वो सारी चीजें यहोवा परमेश्वर ने बनाई। और जब वो बाग तैयार हो गया तो परमेश्वर ने भूमि की धूलि से मनुष्य की रचना की। साइंस मनुष्य के अंदर जितने तत्व पाए गए हैं उसके शरीर में, उसको प्रूफ करती है कि उसका संबंध पृथ्वी के प्रत्येक कण से पाया गया है। परमेश्वर ने यांत्रिक वैज्ञानिक रीति से, आश्चर्यक्रम रीति से आदम की रचना की और परमेश्वर ने आदम तक बनाने में 6 दिन लगा दिए। पृथ्वी पर परमेश्वरीय जो ईश्वरीय व्यवस्था थी, डिवाइन ऑर्डर था, वो लाने के लिए तब उसने मनुष्य के शरीर में व्यवस्था लाई और एक बार ईश्वरीय व्यवस्था स्थापित हो गई तब परमेश्वर ने महिमा को लाया। उसके नथनों में जीवन का जो खास श्वास फूका और उससे आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:7 के अनुसार एक्चुअली परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मानव शरीर में फूंक दिया। मनुष्य की रचना को परमेश्वर के स्वरूप तथा समानता में किया गया था। तब स्त्री की रचना मनुष्य की पसली से हुई और ना ही वस्त्र था ना ही कोई आवरण था और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। बाइबल कहती है उत्पत्ति 2:25 में सभी प्राणियों को आवरण दिया गया था। जानवर के रोए हैं, पक्षियों के पास पंख हैं, मछलियों के पास कवच हैं, लेकिन मनुष्य को बाह्य आवरण की आवश्यकता न थी क्योंकि दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर ने उसे महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा था। साम 8:5 में वर्णन है। मुकुट के लिए हिब्रू वर्ड है अतर, जिसका अर्थ है घेरना या आच्छादित हो जाना, या दूसरे शब्दों में कहूं स्त्री और पुरुष को परमेश्वर की महिमा से कवर किया गया था। उसे स्वाभाविक वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। और ये जो पहला जोड़ा बना था इसने परमेश्वर की आशीषों को अनुभव किया जो अनमोल थी। उस ईडन गार्डन में बिना कृषि के सब कुछ उत्पन्न था। जानवर मनुष्य के साथ एकता में थे। वहां कोई बीमारी, रोग, गरीबी नहीं थी। लेकिन सबसे सर्वोत्तम बात यह थी कि इस जोड़े का ये सौभाग्य था कि वे परमेश्वर की महिमा में साथ साथ चलते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? जब व्यवस्था लग गई, महिमा आ गई और महिमा में इसे अब जीवन के वृक्ष से खाते रहना था। लेकिन इसने क्या किया कि जो आज्ञा दी गई थी उसको तोड़ दिया। परमेश्वर की महिमा जब आ गई, आशीष अपरंपार हो गई। लेकिन पतन कब से शुरू हुआ? जब प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को जो आज्ञा दी थी कि वे भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाएं, क्योंकि अगर ये आज्ञा तोड़ेंगे तो इनकी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर को उन्होंने ठट्ठे में उड़ाया, हंसी में, व्यर्थ में लिया और शैतान ने परमेश्वर के वचन को घुमा फिरा के टेढ़े विरोधाभास के साथ चुनौती दी कि अरे तुम खा लो, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के
तुल्य हो जाओगे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4 एंड 5। तब आदम अपने कार्य के पूर्ण ज्ञान के साथ परमेश्वर की अवज्ञा का चुनाव कर दिया। मीन्स उसने डिसोबीडियंस की। मीन्स द बॉटम लाइन ऑफ हिज कमिटिंग सिन इज फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का जो भय था वो उसमें नहीं रहा, हट गया, और इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। उसे कहना ये चाहिए था कि मैं तो पहले ही परमेश्वर की समानता में हूं, मेरी आंखें तो पहले ही खुली हुई हैं, मैं उसके साथ संगति कर रहा हूं। लेकिन इसने परमेश्वर की आज्ञा का अनादर कर दिया। उसका अनादर राज्य के प्रति एक तरह से बगावत हो गया। तब न्याय हुआ। न्याय क्या आया? डिवाइन जजमेंट क्या आया? तुरंत ही आदम और हवा ने जान लिया कि वे नंगे हैं, और परमेश्वर की महिमा हट गई। जिस महिमा ने उन्हें कवर किया हुआ था वो हट गई, और आदम महिमा रहित हो गया, ईश्वर रहित हो गया। इसलिए बाइबल कहती है कि जब हम पैदा हुए तो हम ईश्वर रहित थे, होपलेस एंड विदाउट गॉड, और परमेश्वर ने उन्हें उसी हाल में अकेला छोड़ दिया, जो कि बाद में जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मृत्यु की स्थिति बन गई। अब नंगेपन को ढांपने का वो व्यर्थ प्रयास में है। उन्होंने शीघ्रता से क्या किया? पत्तियां ली, अंजीर की पत्तियां ली, अपने हाथों की कारीगरी से अपने आप को ढांक लिया। परमेश्वर ने भी देखा उन्होंने क्या किया, सो उन्हें न्याय दंड दिया और उन्हें चमड़े का नया अंगरखा पहनाया। मैं विश्वास करता हूं वहां पर परमेश्वर ने मेमने का ही वध किया, जो परमेश्वर के मेमने की प्रतिछाया है, जो आने वाले दिनों में आएगा और मनुष्य का परमेश्वर से फिर से संबंध स्थापित करेगा, अर्थात लैम्ब ऑफ गॉड। तब वह पतित लोग उस बगीचे से निकाल दिए गए जहां अनंत जीवन था। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं, जजमेंट जो होता है वो कठोर है। ये क्यों आया? आदम के निरादर के परिणाम स्वरूप। जब परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति होती है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप एंटर करते हैं, जब आप उसको महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप परमेश्वर को हल्के से नहीं ले सकते, आप उसकी आज्ञा को तोड़ नहीं सकते। आपने परमेश्वर की महिमा को करना है, उसकी महिमा को प्रकट करना है। याद है यीशु ने कहा था, हे पिता अपने पुत्र की महिमा कर ताकि पुत्र के द्वारा तेरी महिमा हो। सुबह आपको इससे पहले मैं आगे इसके डेप्थ में ले जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की महिमा। सो व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड? परमेश्वर की महिमा क्या है? ये प्रश्न का उत्तर एक तरह से समझिए, मैं आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। जब मैं कहता हूं परमेश्वर की महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज नॉट सिंपली ए क्लाउड। ये केवल बादल ही नहीं है। परमेश्वर की महिमा बादल में इट्स ए साइन। परमेश्वर अपने आप को बादल में छुपा लेता है। उसका नाम महिमामय है, महिमा युक्त है। अगर वो अपने आप को बादल में न छुपाए तो उसके मुख को तो कोई देख नहीं सकता। उसके आसपास सब भस्म हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। तो पुराने नियम के अनुसार इट्स गुड कि परमेश्वर अपने आप को छिपाए रखता है। इसीलिए दाऊद प्रार्थना करता है, तेरा गुप्त स्थान कौन सा है? गॉड इज ड्वेलिंग इन द सीक्रेट प्लेस। उसके गुप्त स्थान को कोई नहीं जानता। और ये मूसा निर्गमन 33 अध्याय अगर 18 से 20 तक पढ़ें, वहां पर ऐसा मेंशन है, ये मूसा परमेश्वर से निवेदन करता है कि अपनी संपूर्ण भव्यता में अपने आप को मुझे दिखा। सो परमेश्वर उससे क्या कहते हैं कि नहीं, तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता है। मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तो मूसा ने परमेश्वर की संपूर्ण महिमा के लिए आग्रह किया और परमेश्वर ने इसको क्या जवाब दिया?
तू मेरी सारी भलाई, इसका मतलब क्या? भलाई का मतलब इब्रानी भाषा में इसे कहते हैं तौब। इसका अर्थ होता है उस परमेश्वर की अच्छाई, इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब जो भी परमेश्वर की गुडनेस है उसको रोका ना जाए। तो उस परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे को अपनी भलाई, संपूर्ण भलाई को दिखाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा मैं तेरे सम्मुख यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा। क्या होता था जब राजा लोगों का युग था, उस टाइम पर क्या होता था? पृथ्वी का राजा जब अपने दरबार में प्रवेश करता है तो उसके नाम को घोषित किया जाता है, अनाउंस किया जाता है शाउटिंग के साथ, महाराजा धीराज जा रहे हैं, लाइक दिस। तब वो अपनी भव्यता में प्रवेश करता है, तो राजा की महानता प्रकट होती है उस वक्त। और दरबार में इस बात की कोई गलती नहीं होती कि कौन राजा है, क्योंकि राजा के साथ उसके खास सलाहकार संग संग चले आ रहे होते हैं। तो अगर ये बादशाह अपने देश के किसी शहर के सड़क पर साधारण कपड़े पहने हुए है और उसके साथ मान लीजिए कोई सेवक नहीं है, तो लोग उसकी वास्तविक पहचान को पहचाने बिना उसके आसपास से यूं ही गुजर जाएंगे। संक्षेप में यही कुछ परमेश्वर ने मूसा के साथ किया। वो कह रहा है मैं अपने नाम का प्रचार करूंगा और मैं अपनी सारी भव्यता से होकर गुजरूंगा। सारी हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा वह सब कुछ है जो परमेश्वर बनाती है। उसका सारा चरित्र, स्वभाव, अधिकार, उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि, है ना, वो जो वास्तव में अतुलनीय है, परमेश्वर की भव्यता, उसकी महिमा में ही ये सब कुछ शामिल है। कुछ भी छिपा हुआ या शेष बचा हुआ नहीं है। तो परमेश्वर की वो महिमा को कोई देख नहीं सकता था, है ना। हम लोग अपने मरणहार शरीर में उसकी महिमा में पवित्र प्रभु की उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकते थे। ये तो प्रभु जी का धन्यवाद कीजिए, यीशु मसीह का धन्यवाद करो जो उसने नए नियम में आकर ये सब कुछ किया। हम लोग वहां तक आएंगे अभी। इब्रानी 12:29 कहता है कि परमेश्वर जो है वो कंज्यूमिंग फायर है। परमेश्वर जो है एक ज्योति है, 1 जॉन 1:5। और ये वो ज्योति नहीं है जो हम लोग घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। समझे मैं कहने की कोशिश क्या कह रहा हूं? 2 कुरिन्थी 4:6 कहता है कि प्रभु की महिमा प्रभु यीशु मसीह के चेहरे में प्रकट की गई। आपको मालूम, बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु का दर्शन पाया, उसके चेहरे को देखने का दावा किया है। ये बात संभव है। पौलुस भी इसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय हम आमने सामने देखेंगे। 1 कुरिन्थियन 13:12। उसकी महिमा अंधकार भरे दर्पण में ढकी है, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूरी तरह उसके प्रकट महिमा को देखकर जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जो शिष्य थे उन्होंने प्रभु यीशु के जीवित हो उठने के बाद उसके चेहरे को देखा, तब उसे महिमा युक्त बदन मिल गया था। महिमा में कुछ लोगों ने प्रभु को देखा, यहां तक कि पुराने नियम में भी, लेकिन वो अपनी महिमा में नहीं दिखाया गया। पुराने नियम में अब्राहम को जो बांज वृक्ष के पास प्रभु प्रकट होता है, उत्पत्ति 18:1-2 में, यहोशू ने भी परमेश्वर के चेहरे को देखा इससे पहले कि वो युद्ध की शुरुआत करे। यहोशू 5:13-14 में परमेश्वर ने उससे क्या कहा? अपने जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। 15वें पद में मेंशन है। यही सत्य है। रेजरेक्शन के बाद आप देखें, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, तब बाइबल कहती है तिबिरियास के झील के तट पर शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन किया। यूहन्ना 21:9 से आगे पढ़ें। इमाउस लूका 24:16 कहता है कि
इमाउस के मार्ग पर 2 शिष्य प्रभु यीशु के साथ चले, लेकिन उनकी आंखें बंद कर दी गईं। इन सभी ने उसके चेहरे को देखा, क्योंकि उसने खुले रूप में अपनी महिमा नहीं दिखाई। उन्हें एहसास होता रहा, अरे ये प्रभु ही है। इसके विपरीत देखिए, जॉन जो प्रेरित यूहन्ना, वो क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय को पढ़ेंगे, आप 10 पद से पढ़ जाना, वहां पर आपको मिलेगा जो बातें मैं कहने जा रहा हूं। वहां प्रेरित यूहन्ना ने आत्मा में प्रभु को देखा, और भोजन करने के समय से बिल्कुल अलग साक्षात्कार है ये। जब यीशु मसीह मरकर जी उठे, उन लोगों ने वहां पर रोटी मछली खाई, वो अनुभव। और जो आत्मा में यूहन्ना देखने जा रहा है वो, क्योंकि वहां उन्होंने महिमा को नहीं देखा है, लेकिन यूहन्ना उसकी महिमा को देख रहा है। सुनिए वहां क्या लिखा है। वो कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द कहते हुए सुना, और मैंने उसे जो तुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने, छाती पर सुनहला पटुका बांधे, और उसके सिर और बाल श्वेत वर्ण पालेके से उज्जवल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, मानो भट्टी में तपाए गए हों। उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। वो अपने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। उसके मुख से चोखी 2धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखकर ये कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। हेलो, ध्यान दें, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप में समय चमकता है। यूहन्ना कैसे उसे देख सका? कारण क्या था? क्योंकि वो आत्मा में था। सो मैं कहना क्या चीज चाहने की कोशिश कर रहा हूं, इतनी मैंने आपको भूमिका बनाई। वो क्यों बनाई? आप देह से, यानी अपने बॉडी और सोल से प्रभु तक नहीं पहुंच कर सकते, आत्मा में ये संभव है। और प्रभु यीशु का लाखों लाख धन्यवाद हो कि वो जीवनदायक आत्मा बना, और उसने वो आत्मा मेरे साथ, मेरे अंदर, मेरे ऊपर कर दी। और उसकी आत्मा जब मेरे अंदर है, तो मेरी आत्मा और उसकी आत्मा जब आपस में एक होती हैं, एक संगति में आती हैं, तब मैं आत्मा में परमात्मा को देख पाता हूं, उसकी महिमा को जानने लगता हूं। जैसे यशाया भी जब आत्मा में था तो उसने परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखा, साराप उसके ऊपर उड़ रहे थे। आइज़ाया 6:1-4। मूसा उसके मुंह को नहीं देख सका। क्यों? क्योंकि मूसा अपने शारीरिक देह में था। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन ओटी एंड एंटी। सो आप इस बात को दिल से समझने की कोशिश करें कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। ये अनमोल खजाना मेरे अंदर डाल दिया है, और मुझे उस स्पिरिट के साथ उसकी अहमियत को समझने की कोशिश करें। हम आज 26 दिन से पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। Without His Holy Spirit, you cannot be a Christian. You cannot see the glory of God, the presence of God. You cannot do the ministry. So अगर परमेश्वर की महिमा को देखनी है, मीन्स स्वयं परमेश्वर को, उसके भलाई को, उसके कार्य को, oh, you have to come in the Spirit. You have to pray in the Spirit. Then you will receive all these things. Otherwise, not possible. Not possible. आप जाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ओह, उसने अपनी महिमा को अब तक हम पर प्रकट नहीं किया है, बिकॉज वी आर नॉट
प्रिपेयर्ड, हमने अभी तक अपने अंदर उसका सिंहासन सजाया नहीं है, उसके भय का। ऐसा ना हो कि हम गफलत में पड़ जाएं, हम खत्म हो जाएं। तो हमारी भलाई के लिए उसने अपने आप को रोक रखा है, अभी तक प्रकट नहीं किया है। सारा जो परमेश्वर का दर्शन करते हैं वो लगातार पुकार पुकार कर कहते हैं कि पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सिंहासन के सामने जो 4 जीवित प्राणी हैं वो पुकारते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। रेवलेशन 4:8 में मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 9 से 11, 5 अध्याय को आप पढ़ना, 13 आयतों से थोड़ी पहले की आयतें, वहां से मैं कुछ बोल रहा हूं। ये मेरे को पैसेज बहुत पसंद है, मैं बहुत उत्साहित होता हूं जब जब इसे पढ़ता हूं, जब जब इसे बोलता हूं। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और तेरी ही इच्छा से सिरजी गई हैं। हेलो, वो महिमा के योग्य प्रभु है। ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड, ग्लोरी बिलोंग्स टू जीसस। और प्रभु ने वो महिमा मेरे अंदर उतार दी है। नाउ can I give you one prophetic word? Now you are the carrier of the glory of Jesus. Now I am the carrier of the glory of Jesus. परमेश्वर की वो महिमा मुझ में वास करती है। हेलो, वो जिसने सूर्य को बनाया है, बोल सोचिए वो कितना चमकदार होगा। क्या आप शारीरिक आंख से देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे उसे, अंधे हो जाएंगे। शाऊल ने जब प्रेरित 9 के अंदर एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, बाइबल कहती है कि उसने उस अगम्य ज्योति को देखा और वो अंधा हो गया। 3 दिन फास्टिंग में चला गया, अंधेपन में उसका एनकाउंटर हुआ था। ये वो ज्योति या वो लाइट नहीं है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये वो आग नहीं है जो किचन में यूज होती है। नो, आजकल लेजर बीम भी चल रही है। लेजर बीम चमकदार है, शक्तिशाली है, बट नॉट परफेक्ट एंड ट्रू, बट गॉड्स लाइट इज ट्रू। संत पौलुस कहते हैं उसकी महिमा अगम्य ज्योति है जिसे कोई देख नहीं सकता। आपको याद है उसने अपनी गवाही दी थी, पौलुस प्रेरितों की पुस्तक 26 अध्याय के 13 पद में गवाही देकर कहते हैं, ए राजा, दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी और हम भूमि पर गिर पड़े। ये सच्ची लाइट थी, ये पवित्र उजियाला था जो स्वयं परमेश्वर है। पौलुस ने इसलिए वर्णन किया, 1 तिमोथी 6 अध्याय 15 और 16 पद में संत पौलुस ने इस बात को लिखा कि जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य है, एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना तो उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं कि परमेश्वर की महिमा देखिए किस लेवल की है। और पुराने नियम के लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ ये आसान करके हमारे साथ, हमारे अंदर कर दिया है।
और इसके बावजूद हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस चीज को जान नहीं रहे। जो लोग जान रहे हैं वो उसको प्रैक्टिस में नहीं कर रहे और उसको हल्के से ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हल्के से ना लें प्लीज। परमेश्वर की महिमा की जितनी विस्तृत जानकारी, जितनी समझ हमारे अंदर होगी, उतनी ही हमारी महान क्षमता उसके भय मानने और उसके आदर करने और उसकी आज्ञा के पालन करने में होगी। आप जिस लेवल पर उसको देखेंगे, तो जब डिवाइन ऑर्डर लगेगा तब ये डिवाइन ग्लोरी आएगी, ये महिमा उतरेगी। और जब इस महिमा में, जब उसकी ये महिमा आती है, तब आप यदि कोई गड़बड़ कर देते हैं तो फिर बहुत भारी नुकसान आपको सहना पड़ेगा। आपके साथ बहुत नुकसान हो जाएगा। यहां तक कि जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल से बताया, स्पिरिचुअल डेथ हो गई आदम की और इसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू की जिक्र किया है निर्गमन की पुस्तक में। महिमा का तंबू, परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका परमेश्वर हूं, उनको मिस्र देश से ले आया हूं और अब मैं उनके बीच में उनके साथ रहूंगा। तो अब परमेश्वर ने हिदायत दी कि किस किस प्रकार से तुमने मेरा निवास स्थान तैयार करना है। आप उसे निर्गमन की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, वहां पर उसका जिक्र मिल जाएगा। आई थिंक पूरा 25 अध्याय 31 अध्याय ऐसा पढ़ लेना, 39 तक पढ़ जाना आप, तो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी कि किस किस तरीके से मिलाप वाला तंबू बनाना है। और मूसा ने सब कुछ उसी प्रकार से बनाया। सुने, मैं अंतिम अध्याय से बात करने जा रहा हूं। निर्गमन 40 अध्याय, उसके 33, 34, 35 पद को मैं आपके सामने समझाऊंगा। कि 33 पद में लिखा है कि इस प्रकार मूसा ने सब काम पूरा कर समाप्त कर दिया। यानी जो डिवाइन ऑर्डर मिला था, इंस्ट्रक्शन किस प्रकार से मिलाप वाला तंबू बनाना था, उस प्रकार से एग्जैक्टली उस प्रकार से मूसा ने सब काम को समाप्त किया। और बाइबल में इसे लिखा गया है कि इसी प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। मीन्स डिवाइन ऑर्डर लग गया। जब डिवाइन ऑर्डर लग गया तब डिवाइन ग्लोरी अब आनी थी। अब सब कुछ तैयार था। परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा, समर्पित लोगों द्वारा परमेश्वर अपनी ईश्वरीय व्यवस्था की स्थापना कर चुका। सो ध्यान, बाइबल कहती है तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। बादल इज ए साइन। सो डायरेक्टली ओपनली अपनी महिमा को वो नहीं दिखा रहा, उसने अपने आप को कवर किया हुआ है बादल में। तब बाइबल कहती है बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? मूसा ने ही सारा कुछ तैयार किया, मूसा की अगुवाई में सब कुछ हुआ और मूसा को ही रोक दिया गया, अंदर तू नहीं जा सकता है। सी, तो एक बार जब ईश्वरीय व्यवस्था स्थापित हो गई, तब डिवाइन ऑर्डर जब लग गया, तब परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट कर दिया। हमारी चर्च में क्या हो रहा है, लोग प्रभु की इस महिमा को नहीं समझ रहे। समझे, परमेश्वर की महिमा जब आप कहते हैं यहां है, तो उस वक्त गंभीर हो जाने की बात है। उस वक्त परमेश्वर के प्रति गंभीर होना है। नतीजा क्या हुआ? मूसा एंटर नहीं कर पा रहा है। उधर देखिए, लय व्यवस्था की पुस्तक में
10 अध्याय से आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वहां पर लिखा है नादाम और अबीहू, ये लोग हारून के पुत्र थे। इन्होंने अपना धूपदान लिया, उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। मीन्स अनहोली। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, गॉड इज कंज्यूमिंग फायर, और उन दोनों को वहीं स्पॉट पे भस्म कर दिया। वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। इट इज वेरी सीरियस थिंग। जब डिवाइन ऑर्डर लगता है तो डिवाइन ग्लोरी आती है, और उस वक्त आपने कोई ऐसी बात की, अशुद्धता की बात, आज्ञा उल्लंघन की बात हल्के से लिया, तो डिवाइन जजमेंट आता है और उसमें फिर खतरा आपके ऊपर आ जाता है। सो हम समझें, मैं इस बात को समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। यीशु मसीह के टाइम पे आपने यूहन्ना 8 से मैं बोलने जा रहा हूं। आप सबको मालूम है कि एक स्त्री को व्यभिचार में रंगे हाथ पकड़ा गया और वो यीशु मसीह के सामने लाया गया, और जब यीशु के सम्मुख से लाया गया उस पर एलिगेशन लगाया गया, कानून की पुस्तक खोली गई और कहा गया कि लिखा है कि जो कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए उसको मार डाला जाए, पत्थरवाह कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बुक ऑफ लॉ में लिखा हुआ था। अब बताइए, हम लोग भी कितनी जल्दी एक दूसरे का जजमेंट कर देते हैं ना, कि इसने ये किया, और सोचते नहीं हैं। और कई बार लोग बाइबल भी कोट कर देते हैं। यहां भी यही हो रहा है, कानून की पुस्तक खोल दी गई है और एलिगेशन लगा दिया गया है। अच्छा है कि पुराने नियम में यह चर्चा नहीं हुई, यीशु मसीह के सामने हुई। यीशु जब आए तो अपने साथ अनुग्रह और सच्चाई लेकर आए। तो यीशु को व्यवस्था के ऊपर आना था, उसने व्यवस्था को पूरा करना था। बाइबल कहती है कि शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाती है। 2 कुरिन्थियन में लिखा है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 2 कुरिन्थियों और उसके आई थिंक होना चाहिए 3 अध्याय में 6 पद में, कि नई वाचा क्या है, नए नियम का कानून क्या है, कि हम शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के हैं, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाती है। तो मृत्यु की ये वाचा जब इतनी तेजोमय थी, तो नए नियम की जब आत्मा हमारे साथ है तो ये वाचा कितनी तेजोमय होगी। इसलिए बाइबल कहती है कि जो लोग आज भी पुराना नियम पढ़ते हैं, मूसा की व्यवस्था को पढ़ते हैं, उसी अंदाज में पढ़ते हैं, वे मतिमंद हो जाते हैं। उनकी बुद्धि के ऊपर, उनके हृदय पर वो पर्दा पड़ा रहता है। लेकिन जब पुराना नियम नए नियम के चश्मे से पहनते हैं, अर्थात जब अपनी उनकी आंखें खुल जाती हैं, आत्मा के प्रकाशन में होकर पढ़ते हैं, तब उनका मन प्रभु की ओर फिरता है। क्यों? क्योंकि प्रभु तो आत्मा है। जहां कहीं प्रभु है वहां आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। और जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप यानी उसकी तेज, उसकी महिमा इस प्रकार प्रकट होती है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु कि आत्मा के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल जाते हैं। सो पुराना नियम और नए नियम के पढ़ने का अंदाज भी अलग है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यीशु मसीह के सामने जब उस स्त्री को लाया गया, रंगे हाथ पकड़ा गया
और कहा गया, कानून की पुस्तक को रेफर किया गया कि ये लिखा हुआ है, तो यीशु उस स्त्री को बचा कर ले गए, क्योंकि यीशु के आने का मकसद ये था कि मैं पापियों को बचाने आया हूं, खोए हुओं को ढूंढने आया हूं, मैं उन्हें नाश करने नहीं वरन बचाने आया हूं। इसलिए किसी ने कहा कि यीशु पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। सुनो, एक बात मेरे दिल में आ रही है, आज सारा संसार एक बात कहता है कि तुम पाप करोगे तो नरक जाओगे, या इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि पापी व्यक्ति नरक जाएगा। मैं इसको इस प्रकार से ट्रीट कर रहा हूं, सुने, आज लोग नरक इसलिए नहीं जा रहे कि वो पाप कर रहे हैं। नो, पीपुल आर गोइंग टू हेल बिकॉज ऑफ सिन। नो, people are going to hell not because of sin, but because they don't know the Savior, they don't know the Jesus. Once they know the Jesus, they know the Savior, they know the revelation, what Jesus has done on the cross, then they will go to heaven. आज लोग इसलिए नरक नहीं जा रहे कि वो पाप कर रहे हैं, आज लोग नरक इसलिए जा रहे हैं कि वो सच्चाई नहीं जानते, वो यीशु को नहीं जानते। इसलिए जो अगर पापी से पापी, कुकर्मी से कुकर्मी यीशु को जान जाएगा तो वो अनंत जीवन पाएगा। मेरी बाइबल कहती है यूहन्ना 17:3 के अंदर कि अनंत जीवन ये है कि तुम उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु को जानो। इफ यू नो जीसस यू विल गो टू द हेवन। धन्यवाद हो कि ये स्त्री को पकड़कर यीशु के पास लाया गया। और सुनिए यीशु ने क्या कहा 10वें और 11वें वचन में। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए जो तेरे पर पत्थरवाह कर रहे थे, एलिगेशन लगा रहे थे, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उस स्त्री ने कहा, प्रभु किसी ने नहीं पत्थर मारा, किसी ने दंड नहीं दिया, सब चले गए। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। जब यीशु ने कहा मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, दैट इज द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और जब वो स्त्री जाने लगी, यीशु ने फिर आवाज दी, सुन, दोबारा पाप मत करना। दिस इज द ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? यदि तुम पाप करोगे तो तुम नाश होगे। सो इफ यू नो द जीसस, यू नो हिज ग्लोरी, यू विल ओबे हिम, यू विल फॉलो हिम, यू विल नॉट कमिट द सिन। ये स्त्री यीशु मसीह के उतनी ही दूरी पर खड़ी थी जितनी दूरी पर वो सब जितने आए थे पत्थर लेके। उनके सामने भी एक मौका था बचने का। यीशु ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। और यीशु के मुख से जब ये वचन निकला, इसमें लाइफ आ गई। उनकी आत्मा प्राण देह को कन्विक्शन करने लगी। हर एक ने कहा, अरे मैंने पाप किया है, और सबने पत्थर फेंक दिए। तो वो झुंड भी पापी था, ये स्त्री भी पापी थी। चाहे आप एक पाप करें, चाहे 10 पाप करें, आप 9 अच्छे काम करें, 1 गुनाह करें, आप के साथ वही एंड होगा, वही रिजल्ट निकल के आएगा। वो भी पापी थे, ये भी पापी थी। एक पापिन स्त्री बच गई, वो झुंड नाश हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को नहीं जाना पहचाना, अपने को हम्बल नहीं किया। वे सब यीशु को वहीं छोड़कर चले गए। डोंट इग्नोर जीसस। Jesus Christ is the Lord of the Lord and King of King. He is the Savior of the whole world. अगर यीशु के पास आकर नहीं बच सके तो फिर तुम कहीं नहीं बच सकते। यीशु है जो तुम्हें बचा सकता है। Still there is hope. So come to Jesus. यीशु को एग्जॉल्ट करें। ओ रिबालाना खली निबी शिदोरोदलो रा ला ला बा शिखेरे हेदेली न खावा। नए नियम में देखें, संत प्रेरित पतरस प्रेरित 5 में प्रचार कर रहे थे आत्मा से भरकर, और वहां पर जिक्र है, प्रेरित 5 से मैं बोल रहा हूं, मिसेस एंड मिस्टर हनन्या का।
ऐसा नहीं कि यरूशलेम में उस वक्त लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, तब भी लोग झूठ बोल रहे थे, लेकिन मिस्टर हनन्या ने, मिसेस हनन्या ने पवित्र आत्मा की महिमा जब हो रही थी, यीशु की महिमा थी, प्रकट थी, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में उसकी महिमा में झूठ बोला। नतीजा स्पॉट पे डेथ हो गई, हस्बैंड भी मर गया। अभी जवान उसके उस मट्टी देकर नहीं पहुंचे थे, मिसेस हनन्या आई, उन्होंने भी सेम बात बोली, झूठ बोला पवित्र आत्मा के अभिषेक में उसकी उपस्थिति में। नतीजा दोनों मर गए। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, जब डिवाइन ऑर्डर लग जाता है तो डिवाइन ग्लोरी आती है, तो डिवाइन जजमेंट भी आता है। सो परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के से ना लें। आज जब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, वो आपके शरीर को अपना मंदिर कह रहा है, तो आप इसकी अहमियत को समझने की प्लीज कोशिश करें। वाचा का संदूक दाऊद के जमाने में, दाऊद को पूरा ज्ञान नहीं था, वो बैलगाड़ी में लाद कर ला रहा था, और बाइबल कहती है कि बैलगाड़ी जरा सी हिलने डुलने लगी तो इस डर से कि वाचा का संदूक गिर ना जाए, ऊजा नामक व्यक्ति ने उसको रोकने की कोशिश की। जैसे ही उसने टच किया, वो व्यक्ति वहीं पर खत्म हो गया, मर गया, जबकि उसने एक भला काम करने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त दाऊद को पूरा ज्ञान नहीं था कि वाचा की संदूक की सेवा कौन करेगा, कौन लाएगा। और फिर उसने उसका अध्ययन किया, शास्त्रियों से पूछा, और उसे ज्ञान हुआ कि कौन लोग वाचा के संदूक के पास आ सकते हैं। फिर उसने दोबारा कोशिश की, और इस बार उसने शास्त्र के अनुसार 2 बल्लियां बनाई, और कांधे पर उन लोगों ने जिनको यह अधिकार मिला था कि लेवी लोग इसको उठाएंगे, और वाचा का संदूक लाया गया, और तब परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हुई। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को, अपनी अहमियत को समझिए कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा को लेकर आता है। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से ये भय मैनिफेस्ट करे कि मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र भय स्थापित हो, और उसके भय में रहते हुए जिस मान सम्मान, जिस आदर के योग्य वो है, हम उसको वो आदर, वो महिमा दे सकें। आमीन। अंतिम बात कहकर मैं समाप्त कर दूंगा, और वो मैं नए नियम से बात करना चाहता हूं। जब त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति स्वयं परमेश्वर यीशु के रूप में सदेह इस धरती पर आने का मकसद क्या था? कि सारी मानव जाति का कल्याण हो, सारी मानव जाति को फिर से बचाया जाए, रिकंसिलिएशन हो हेवन के साथ, पिता परमेश्वर के साथ। जो रिश्ता टूटा है वो हमेशा के लिए परमानेंट इलाज हो जाए, इसलिए यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह जब आए, उन्होंने सब कुछ क्या करना है इस धरती पर मनुष्य की हैसियत से रह करके दिखाया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में मानव जाति को बचाने के लिए कुर्बान होता है, अपना लहू बहाता है, पाप का जो दंड है, पेनल्टी है, उसको पे करता है, वो हमारे लिए मारा जाता है। यानी जो मौत हमारी थी वो खुद मरता है, जिस नरक में हमें जाना है उस नरक में जाता है, नरक के किंग को, उसके सर को कुचलता है, और सारा दंड जब चुकता हो जाता है परमेश्वर की दृष्टि से, जो हमारी नजर में 3 दिन की बात है, परमेश्वर की दृष्टि में युगों की बात है, क्योंकि एक एक दिन 1,000 साल के बराबर बाइबल कहती है। ये सारी चीजें जब पूरी हो गई, टोटल दंड पेनल्टी चुकता हो गई, तब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद वो 40 दिन तक लोगों को अपने जीवित होने का प्रमाण देता रहा। इतना ही नहीं, वो ऊपर स्वर्गारोहण के दिन वो लोगों से कह कर गया कि तुम लोग यहीं ठहरे रहना, पिता की प्रतिज्ञा की बाट जोहना, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और उस प्रतिज्ञा को जो उसने की है मैं उसे
तुम्हारे ऊपर उड़ेलूंगा। जब तुम पवित्र आत्मा को पा जाओगे तब यहाँ से तुम बाहर निकलना और उसके चलाए चलना, उसके साथ तब तुम संगति किया करना। जब तक वो ना मिले तुम लोग यहीं पर ठहरे रहना। और यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ, वो स्वर्ग में पहुंच गए और स्वर्ग में जैसे ही एंटर हुए पिता ने उनको बड़ी, पूरा स्वर्ग उनकी खुशियां मना रहा था, हुल्लड़ मचा रहा था, जय जयकार हो रही थी। पिता ने यीशु को गिफ्ट दिए, यीशु ने गिफ्ट लेने को तैयार नहीं हुए। पिता ने कहा कि मैं तीनों लोकों में तेरे नाम को अति महान करूंगा, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, नरक लोक में तेरे नाम के आगे सब घुटने झुकेंगे, सब तुझे अंगीकार करेंगे। यीशु खड़े रहे। पिता ने कहा आज से तू मेरे दाहिने सिंहासन पर विराजमान हो, आ बैठ, और तेरे ही नाम से पापों की क्षमा मिलेगी। अगर किसी को पाप की क्षमा चाहिए तो उसे तेरे अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल तेरा नाम दिया जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी रुके रहे। अचानक से स्वर्ग में खामोशी सी छा गई। पिता ने कहा क्या बात बेटा, तुझे मैंने 2 गिफ्ट दिए, तू खुश नहीं हुआ? यीशु ने कहा पिता याद कर, जब मैं धरती पर था 30 साल मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन समय आने पर तूने पवित्र आत्मा, इस तीसरे व्यक्ति को, त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति को तूने मेरे ऊपर उतारा, और मेरी आत्मा और उसकी आत्मा जब एक हुई और हम दोनों ने मिलकर शैतान के राज्य को समाप्त किया और तेरे राज्य की स्थापना की। मैंने इस धरती पर जाकर देख लिया है, मनुष्य के रूप में इस धरती पर बगैर पवित्र आत्मा के जीवन जीना नामुमकिन है। सो अगर तू मुझे एक तीसरा गिफ्ट दे, तीसरा प्रॉमिस करे, तो मैं ये 2 प्रॉमिस को ले लूंगा। पिता तो खुश था। पिता ने कहा बोल बेटा क्या प्रॉमिस तू मांगता है? आई प्रॉमिस यू। उसने कहा पिता ऐसा कर, जो व्यक्ति, जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करे, मेरे बलिदान में यकीन करे, मुझे स्वीकार करे, मुझे प्रभु ग्रहण करे, उसके ऊपर तो इस त्रिएकता के तीसरे व्यक्ति पवित्र आत्मा की छाप लगाएगा, उसे मेरी आत्मा तो उसे दे देगा, उसके अंदर मेरी आत्मा वास करने लगेगी। पिता ने कहा ओके आई हैव गिवन दिस प्रॉमिस टू यू। तो बाइबल कहती है प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय के 33वें पद में वहां पर लिखा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। मीन्स द होली स्पिरिट दैट डे केम डाउन। बाइबल सेज कि जब उसने पिता से ये प्रतिज्ञा ले ली, दैट्स वाई द नेम ऑफ द होली स्पिरिट, वन ऑफ द नेम ऑफ द होली स्पिरिट इज स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस। Spirit of promise. Bible says, being therefore exalted at the right hand of God and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out this to you yourself are seeing and hearing. पवित्र आत्मा का एक नाम है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये डिवाइन ऑर्डर लग गया। ये सब कुछ करके ईश्वरीय व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। आज जो भी यीशु को ग्रहण करेगा उसके अंदर पवित्र आत्मा आएगा। राइट? जब ये डिवाइन ऑर्डर लग गया तब डिवाइन ग्लोरी आई। ग्लोरी कैसे आई कि अब आप पर पवित्र आत्मा की छाप लग गई, बयाने में आत्मा मिल गया, जो आत्मा बाहर था अंदर आ गया। अब आप आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण होते हैं, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करते हैं, संगति करते हैं, और धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपको मसीह के करीब ले चलता है, मसीह का स्वरूप आप में बनाने लगता है और उसकी महिमा आपके अंदर बढ़ने लगती है। Divine glory, you will be touched by him. आप उसकी संतान होने का हक पा जाते हैं, आप परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। हेलो, बाइबल क्या कहती है? 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 में, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट
1 Corinthians 16 and 17. Do you not know that you are God's temple and the God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy and you are that temple. Hey, सुन रहे हो? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। डिवाइन ऑर्डर जब लग गया, होली स्पिरिट आ गया, डिवाइन ग्लोरी आ गई, तो डिवाइन जजमेंट साथ में आया। क्या डिवाइन जजमेंट? इफ यू डिस्ट्रॉय द गॉड्स टेम्पल, God will destroy you, because God's temple is holy and you are that temple. Hello, you are that temple. So मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? अब आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं. You are not an ordinary person. You are the wonder of God. You are the miracle of God. God himself is living in you. आप अपनी वैल्यू को समझने की कोशिश करें. आप किसको लेकर चल रहे हैं नाउ? You are carrying God. You are mini God, mini Christ. Christ, the hope of glory, is in you. Whatever you will say, that will happen. You are representing God. You are representing Jesus. You are reflecting God. You are reflecting Jesus. You are revealing God. You are revealing Jesus. संसार आज प्रभु को चाहता है. रियल ट्रुथ उसे चाहिए. You can give Jesus. इस असहाय संसार को, मरते हुए संसार को आप जीवन दे सकते हो. टुडे यू आर द सेवियर ऑफ द जेंटाइल. ओ यू आर द सेवियर. वो ग्लोरी, वो महिमा आप में है. और हम छोटी छोटी बातों के लिए मनमुटाव करते हैं. छोटी छोटी बातों के लिए झूठ फरेब कर देते हैं. निंदा बुराई करने में, चुगली करने में, चापलूसी करने में लगे रहते हैं. समय के हिसाब से तो गुरु हो जाना चाहिए था. 50-50, 60-60 साल के मैं क्रिश्चियनों को मिला हूं, सेवकों, सीनियर सेवकों को मिला हूं. स्टिल दे आर इन द फ्लैश. और अभी भी वो शारीरिक बातों में मस्त हैं. मन मुटाव है, किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे. कब तक? हर एक ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है. बाद में कोई चांस नहीं मिलेगा. अभी भी समय है. बी इन हिज स्पिरिट, वॉक इन हिज स्पिरिट, टॉक इन हिज स्पिरिट, स्पेंड टाइम इन हिज प्रेजेंस. 100% डिपेंडेंसी ऑन स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड. लेट द स्पिरिट विच इज इन यू मैनिफेस्ट all his 7 spirit, and you will move in the fullness of the Holy Ghost. This is my earnest prayer, that the Spirit of truth, who is with you, in you, upon you, manifest himself in all the 7 spirit, the Spirit of the Lord, Spirit of the wisdom, Spirit of the understanding, Spirit of counsel, Spirit of might, Spirit of knowledge, Spirit of the fear of the Lord, so that you can, myself can enjoy the fullness of the Spirit of the Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Holy Ghost. Thank you so much. Oh,
See, when all the seven Spirit of God are functioning in your life, there will be no confusion. You will be balanced, full of power. You will not become puffed up because of the abundance of power and revelation manifested in your life. If this is good and necessary for the Ephesians church, we need it even more today. Need to be filled with all the fullness of the Holy Spirit. So I suggest make room for the Spirit. You must have the place for Him. Yes, Lord. Thank you, Rabalina Hakbara. Shokhere Delina Hakbare. Thank you, Lord. Thank you so much. Father, I thank you. Thank you, Lord. Let the Holy Spirit charge of your day. You will experience tremendous increase in every area of your life. So pray with me, Father, in the name of the Lord Jesus. I understand from the Word of God that you will take charge of my circumstances if I let you. You are the Lord of my life, and I pray that you order my step today in the course that you have already planned for me. I want to meet only the people that you plan for me to meet today, and hear the things that you plan for me to meet today, and hear the things that you plan for me to hear and say, the things you plan for me to say. Thank you, Lord. I commit myself 100% into the hand of Holy Spirit. Father, I am so blessed. I am such a blessed man. I don't know how to thank you enough, for you have blessed me so much. You said in your word that you have blessed me. And I looked at my life and found it so. And every day that comes into my world is blessed. Oh, glory to God. Glory to God. Say, I am blessed. I am blessed. I am blessed. Remember, God says, your daddy says, you are king and priest. So begin to pray in the Holy Spirit. Sing in Holy Spirit, dance in Holy Spirit, laugh in Holy Spirit, keep praising in Holy Spirit, think in Holy Spirit, or rejoicing in His presence. For His presence there is fullness of joy. Let your day full of joy, let your life be full of joy, as you grow in the revelation knowledge of the Christ Jesus, the Son of the Most High God. Carry His glory, carry His presence in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord. So प्रभु का हम धन्यवाद देंगे. होमवर्क आपको मिल चुका है. Praise the name of Jesus. आइए प्रार्थना करें. प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं. इस झुंड को आपके नाम से आशीषित करते हैं. प्रभु जी, इन्हें ब्लेस किया है. प्रभु, जो शिक्षा इन्हें मिली है उस पर अमल करें और प्रभु आपके नाम को महिमा दे पाए. प्रभु जी, मैं सारी महिमा और आदर आपको देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ.
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता इस झुंड के साथ युगानुयुग होती रहे। आमीन एंड आमीन। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू।